اگر کسی ماں سے اس کا 6 ماہ کا بچہ چھین لیا جائے یا اغوا کر کے مار دیا جائے تو اس ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ شبیر نے لاہور کے علاقے جنوبی چھاونی میں ایک ایسا دل خراش واقعہ دیکھا ہے جس میں ایک 6 ماہ کا بچہ قتل کر دیا گیا تھا۔ شبیر کو جب یہ اطلاع ملی کہ لاہور کے علاقے جنوبی چھاونی کے گوریا گاؤں کراچی دربار میں ایک غمزدہ عورت اپنے والد کے ساتھ زخمی حالت میں اسپتال سے واپس آ رہی ہے تو شبیر بھی موقع پر پہنچ گیا۔ شبیر نے دیکھا کہ وین میں چہرہ ڈھانپے ہوئے ایک عورت انتہائی غمزدہ حالت میں تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ساتھ بیٹھا ہوا معمر شخص جو اس عورت کا باپ لگ رہا تھا خاموش تھا اور بے بس دکھائی دے رہا تھا۔ شبیر کو یہ جاننا تھا کہ آخر اس عورت کے صرف 6 ماہ کے بچے کو کیوں قتل کیا گیا تھا۔ وہ کون شفیع القلب انسان تھے جنہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ معصوم بچے کو قتل کر کے وہ کتنا بڑا گناہ کرنے جا رہے تھے۔ اسی دوران شبیر کو معلوم ہوا کہ اس خاتون کا نام رخسانہ تھا اور اس کی 14 سال پہلے نوید نامی شخص سے شادی ہوئی تھی جس سے رخسانہ کے 5 بچے ہوئے اور یہ سب سے چھوٹا بچہ تھا جسے بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کی عمر صرف 6 ماہ تھی۔ شبیر نے رخسانہ کے بچوں کو دیکھا تو وہ سارے معصوم گمسم دکھائی دے رہے تھے۔ مقتول بچے کی تصویر دیکھ کر تو شبیر کا دل دہل گیا اور وہ سوچنے لگا کہ آخر اس بچے کا قصور کیا تھا۔ رخسانہ اور اس کے شوہر کے بارے میں شبیر کو پتہ چلا ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے اور بچوں کا بھی خیال رکھتے تھے۔ شبیر زخمی رخسانہ پر بیتنے والی قیامت کا حال جاننے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ سفر کر رہا تھا اور اس کے ذہن میں سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ آخر رخسانہ کے 6 ماہ کے بچے کو کس نے اور کیوں قتل کیا؟ شوہر نے؟ مگر باپ اپنے بچے کو کیوں مارے گا جبکہ وہ ذہنی طور پر بھی ٹھیک تھا اور بیوی سے بھی کوئی جھگڑا نہیں تھا؟ یہ سوال شبیر کو ذرا اور گہرائی میں لے گیا۔ اب اس کے سامنے رخسانہ اور اس کے شوہر کی زندگی کی ایک جھلک تھی۔ شبیر نے دیکھا کہ رخسانہ شوہر کے پاس بیٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ کام پہ جائیں گے۔ کوئی کام ملا کیا؟ ہاں مل گیا بس۔ چلیں اللہ کا شکر ہے کہ کام تو ملا۔ اچھا آپ مجھے بتائیں کہ میں آپ کے کپڑے نکال دوں؟ رخسانہ کے ہر سوال کا جواب اس کا شوہر صرف ہوں ہاں میں دے رہا تھا۔ رخسانہ حیرت سے کاندھے اچکاتے ہوئے چلی گئی۔ کیا ہو گیا؟ آپ صحیح سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ ہوں ہاں میں جواب دے رہے ہیں۔ آپ مجھ سے خفا ہیں کیا؟ نہیں۔ اچھا چلیں میں بچوں کو ذرا ناشتہ کرا دوں، ٹھیک ہے؟ شبیر کو اندازہ ہوا کہ رخسانہ کا شوہر کام کاج نہ کرنے کی وجہ سے شدید احساس محرومی اور تنہائی کا شکار تھا۔ شبیر کو یہ بھی لگا کہ وہ حد درجے کا ناپرست اور اپنی ہی ذات میں رہنے والا انسان تھا۔ ایک دن شبیر نے دیکھا کہ رخسانہ کا شوہر گھر میں داخل ہوا تو رخسانہ بہت خوش تھی۔ وہ شوہر کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک طرف لے گئی۔ آپ نے اتنی دیر کر دی آنے میں؟ کیا ہوں؟ اچھا آپ کو ایک بات بتانی تھی، اللہ ہمیں ایک اور خوشی سے نوازنے والا ہے۔ کیا ہوں کر رہے ہیں آپ؟ کیا آپ خوش نہیں ہوئے کیا؟ ہوئی ہے خوشی کیوں نہیں ہوئی ہے؟ تو پھر اتنا برا سا منہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ اچھا سنیں، ابھی کسی کو بتائیے گا مت، کیا ہے نا کہ خواہ نظر لگ جاتی ہے لوگوں کی۔ ٹھیک ہے، اب اپنے شوہر سے یہ بھی پوچھ لو کہ اسے بھوک لگی یا نہیں لگی ہے؟ اب ہاں کھانا تو دے رہی ہوں نا میں آپ کو۔ ویسے دنیا کے پہلے شوہر ہوں گے آپ جسے یہ سب کچھ سن کے اتنی خوشی بھی نہیں ہوئی ہے۔ تو کیا کروں، ڈھول تاشے لے کر آ جاؤں میں؟ ہاتھ تو لانے بھی چاہیے نا آپ کو۔ ویسے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا ہے نا تو وہ خوشی سے ناچنے لگتا۔ یہ لو ناچ لیا بس، اب خوش؟ ارے کھانا بھی لا دو، بھوک لگی کب سے کہہ رہا ہوں میں۔
बच्चे की विलादत के दिन करीब आ रहे थे और रुखसाना का शौहर अपनी ही जात में गुमसुम था, बल्कि वो पहले से भी ज्यादा खामोश हो गया था। शायद माली परेशानियां उसे मजीद औलाद की खुशी से महरूम किए हुए थीं। फिर बच्चे की विलादत भी हो गई, लेकिन रुखसाना के शौहर के चेहरे पर हवाइयां ही उड़ती रहीं। सो जाओ मेरा बाबा, सो जान, सो जाओ बाबा। नहीं 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 भूख लगी है? हाँ? नहीं 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 आज सो जाओ बाबा, मेरा प्यारा सा बेबी छुएगा। रुखसाना का शौहर घर में दाखिल हुआ तो रुखसाना अपने नौमौलूद को सुलाने की कोशिश कर रही थी। नींद नहीं आ रही आपको? हाँ, सो जाओ, जल्दी से सो जाओ, बाबा आने वाले हैं। मेरा बेबी, मेरा बेजान सबसे प्यारा है। अरे देखो, आपके बाबा भी आ गए। मेरा फिजान सबसे प्यारा है, सबसे अच्छा बच्चा है। हाँ है तो सबसे प्यारा, लेकिन इसके जैसे निशान और बच्चों के नहीं है। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। जल्दी से सो जाओ, बाबा आने वाले हैं। मेरा बेबी, मेरा बेजान सबसे प्यारा है। अरे देखो, आपके बाबा भी आ गए। मेरा फिजान सबसे प्यारा है, सबसे अच्छा बच्चा है। हाँ है तो सबसे प्यारा, लेकिन इसके जैसे निशान और बच्चों के नहीं है। हाँ, वो अल्लाह ने इसे नजर बद वैसे ही लगा कर भेजा है। वैसे आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? कोई काम नहीं था क्या आज करने को? खाना लगा दूं मैं आपका? पता नहीं। पता नहीं? क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है। अच्छा, मैं आपकी दवाई ला दूं? ला दो। ये लीजिए, जरा फैजान को संभालिए, मैं ले आती दवाई। रुखसाना ने अपने शौहर को पानी ला कर दिया। ये लीजिए। दवाई पकड़ी, मुझे दे दीजिए फैजान। आप दवा लें अपनी, मैं इसे संभालती हूँ। मेरा गुच्चू, बस बस बस। चलो, अभी हम सोएंगे। बाबा के पास थे, बाबा के पास थे। शब्बीर ने देखा कि रुखसाना किसी भी वक्त अपने बच्चे को तन्हा नहीं छोड़ती थी, खास तौर पर सबसे छोटे बच्चे को, क्योंकि उन दिनों इलाके में बच्चों के अगवा और डकैती के वाकयात बढ़ रहे थे। एक दिन रुखसाना घर में अपने बच्चे को गोद में लिए टीवी देख रही थी। एक खबर का टिकर चला तो रुखसाना ने टीवी की आवाज तेज कर दी। खबर में ये बताया जा रहा था कि किसी अस्पताल में नामालूम अफराद किसी नौमौलूद को जबरदस्ती छीन कर ले गए थे और जब लोगों ने उनका पीछा किया तो उन्होंने बच्चे को जमीन पर दे मारा था, जिससे उसकी मौत वाक़ हो गई थी। ये खबर देखकर रुखसाना का सांस अटक सा गया। वो टीवी की आवाज बंद करके देर तक बच्चे को सीने से चिमटाए रही। शौहर सामने आया तो वो बीवी को खौफ के आलम में देखकर हैरान रह गया। क्या हुआ? आप अच्छा हुआ आप आ गए। क्या हुआ, खैरियत तो है? कुछ नहीं, अभी टीवी देख रही थी, खबर देख के दिल दहल गया मेरा। खबर? कैसी खबर? कुछ नहीं, वो अस्पताल से एक बच्चे को अगवा किया गया और उसे जमीन पे दे मारा। उफ, मेरे खुदा, कैसे जालिम लोग हैं। तो क्यों देखती हो इतना टीवी? अब नहीं देखूंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो मेरा फैजान था। मैं सोचो कोई ऐसी बातें हो सकता है बच्चे को अगवा करने वाले उसके करीबी अजीज हो और कोई ऐसी वैसी बात हुई हो। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर वो बच्चा नाजायज भी था तो कोई ऐसा कैसे कर सकता है बच्चे के साथ?
तुम नहीं समझोगी। ये मर्द के अंदर जो है ना बहुत खतरनाक है, बहुत बेहशियाना है, ये कुछ भी करा सकती है। अच्छा फर्ज करें मेरे मुंह में खाक, लेकिन अगर आपको जरा सा भी शक होता है कि फैजान आपका बेटा नहीं है, तो क्या आप भी उसकी तरफ इसे जान से मार देंगे? शक? एक बात कहूँ, बुरा नहीं मानना, मुझे तो कभी कभी लगता है कि ये हमारे बच्चों से अलग क्यों है। देखो ना, हमारे किसी बच्चे के निशान नहीं, लेकिन इसके निशान है। तो क्या? मैं तो तुम्हें अपनी सोच बता रहा था। ओ मेरे खुदा, आप दूर रहिए, डर लग रहा है मुझे आपसे, चले जाइए यहाँ से। अरे क्या हो गया, पागल हो गई तुम? मैं तो तुम्हें ऐसी एक बात बता रहा था। नहीं, आप में साफ साफ कहने की हिम्मत नहीं है, आप मुझसे तहमत लगा रहे। देखो मेरा दिमाग खराब मत करो, वैसे मेरे सर में दर्द हो रहा है, जाओ यहाँ से। मैं नहीं जा रही। उस रात रुखसाना की जिंदगी में वो भयानक वाकया पेश आ गया जो एक माँ, एक बीवी तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। रुखसाना के शौहर ने अपने सबसे छोटे बेटे फैजान को नाजायज होने के शुबे में दूसरे कमरे में ले जाकर कत्ल कर दिया था और बचाने की कोशिश करने पर अपनी ही बीवी को जख्मी भी कर दिया था। इस संदोनाक वाकई की जो तफसील दुखी माँ ने बताई वो ये है। कोई इशू नहीं था, बिल्कुल सही गुजरी थी जिंदगी। जानबूझ के इन्होंने मारा मेरे बच्चे को। कहते कि नहीं ये हमारा बच्चा नहीं है। पहले कहते लाइट बंद कर दो, मैं लाइट नहीं बंद की। कहते लाइट बंद कर दो, मुझे बेसुकून नहीं हो रही है, रात 1:30 का टाइम है। कहते मैंने कहा अंधेरा से बच्चे डर जाएंगे। कहते नहीं लाइट बंद कर दो, पर्दा नीचे कर दिया। मैंने कहा पर्दा उठा देंगे, लाइट जला दो, बच्चे डर जाएंगे। कहते नहीं मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे बेसुकून नहीं हो रही है। मैंने लाइट बंद कर दी है, मेरी आंख लग गई। मुझे नहीं पता ये सोए हैं नहीं सोए हैं। बच्चे भी सो गए, मैं भी सो गई हूँ। मुझे नहीं पता ये क्या इन्होंने किया है। मेरा बच्चा मेरे साथ सोया था, इन्होंने पता नहीं क्या चीज मारी मेरे बच्चे के सर पे। मेरे बच्चा जरा आवाज नहीं उसकी निकली, मुझे पता नहीं आवाज काने पड़ी। मैं एकदम चीख के उठी, मेरे बेटे ने लाइट चलाई जल्दी से। तो चीखे कहते मैं बस यही कहते मेरा बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा नहीं है। एक बच्चे को सर जमीन से मारा, जमीन के साथ मार के कहते से गर्दन पे से दबोच लिया ऐसे। कहते कि नहीं ये मेरा बच्चा नहीं है। फिर बाद में मेरे गिलास शीशे का मारा इधर, मैं बचा रही थी बच्चे को। कहते कि नहीं, क्या उनके ज़हन में था मुझे कुछ नहीं पता। ना कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, कोई बात नहीं ऐसी हुई, बिल्कुल सही सोए रात को। मुझे नहीं पता क्यों मारा मेरे बच्चे को, इन्होंने जानबूझ के मारा है। वो चंद्रग्रहण का निशान था। कहते बाकी बच्चों के निशान क्यों नहीं, इसके क्यों अकेले के निशान है। मैंने कहा बाकी अल्लाह ताला की कोई ज़ाहिरी निशान अल्लाह ताला ने दिया, मुझे क्या पता। कहते नहीं इसके क्यों, बाकियों के क्यों नहीं है। ये बाकी 4 बच्चे पड़े। एक नेक शरीफ औरत पर नाजायज औलाद की तोहमत लगाकर उसके बच्चे को कत्ल करने वाले राशिद बाप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। ये है रुखसाना के मासूम बच्चे जो वाकई के चश्मदीद गवाह भी थे। 2 बजे हम सारे सो रहे थे, तो ना बाबा ने ना आराम से फैजान को पकड़ के अंदर ले गए और ना उसका ना गला दबाए थे और ना नीचे जोर से फेंका। तो जोर से आवाज है, मैं कहती क्या हुआ, ये पटाखे की आवाज कहाँ से आई। अब कहती कुछ नहीं हुआ। जब मैं अंदर गई तो फैजान नीचे गिरा तो उसका खून निकल रहा था। तो ना मम्मा ने ना उसे खींचने की कोशिश की, पर पापा ने उनके मम्मा के सर पे ना 3-4 गिलास मार दिए थे जोर जोर से। और यहाँ मम्मा का खून निकल रहा था और मैंने बचाने की कोशिश की, हमने बचाने की कोशिश की, पर ना बाहर ना कोई बंदे खड़े थे म्याओं के। तो उन्होंने ना सुराख से देखा कि ना यहाँ ना घर में ना लड़ाई हो रही है मियाँ बीवी की। तो ना उन्होंने ना जोर से ना दरवाजा खटकाया और जल्दी से मैं भाग के यहाँ दरवाजा खोला। तो ना वो लोग अंदर आए। बाबा कहते हैं मैं फिर बाबा ना उस वक्त ना मम्मा का ना गला दबा रहे थे और फैजान का ना जोर से ऐसे पकड़ा हुआ था। शब्बीर ने लाहौर में पेश आने वाले इस संदोहनाक वाक़े की शदीद मजम्मत की है और अपने ही बच्चे के कातिल को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा किया है। मतलब इस ने खुद मारिया ते ये बच्चा जड़ा पहले सन गैर, लेकिन के बाद फिर रिश्तेदारी हो गई। लेकिन पहले काम उल्ट पुलट करता सी, लेकिन इन्हें नहीं करता, जहर का हाथ टप गया तो उन्हें बच्चा ही मतलब मार दिता। दूसरे जी भी ये कतल कर देने लगा सी। अगर ये ना मौके से कुछ साडे बच्चे सन उत्थे बैठे उन्हें ना वेखते तो ये इन्होंने काम कर देना।
हुकूमत दे नाल साडा मुतालबा यही है कि असीं अपनी कानूनी कार्रवाई पूरी करना चाहते हैं और उस तो बाद वो सानू पूरा इंसाफ देना चाहिए। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने लोधरा के इलाके दुनियापुर के नवाई चक नंबर 223 WB की रिहायशी एक शादीशुदा लड़की की अचानक गुमशुदगी की खबर सुनकर इलाके का दौरा किया तो एक अफसोसनाक कहानी सामने आ गई। ये है दीनापुर में चक नंबर 233 WP। दूर तक खाली जमीन, खेत, मवेशी, मकान के नाम पर बड़े बड़े कच्चे अहाते, रंगदार टीन और लकड़ियों के दरवाजे, सहन और सहन में बिछी हुई चारपाइयां। इसी गांव में शब्बीर ने एक ऐसा घर भी देखा जिसके दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। जो शादीशुदा लड़की इस घर से अचानक लापता हो गई थी, उसका नाम इरम था। इरम की 4 साल पहले बिलाल से शादी हुई थी और वो एक बच्चे की माँ थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि इरम का बच्चा रो रहा था और उसे वो अपने कच्चे टूटे फूटे घर में गोद में लिए बहलाने की कोशिश कर रही थी। मेरा बच्चा, अभी तेरे दूध का बंदोबस्त करती हूँ। इस दौरान वो मुख्तलिफ बर्तनों को उलट पलट कर भी देखती जा रही थी, मगर घर में दूध कहाँ। इरम परेशान हो गई और बच्चे को सीने से चिमटाए हुए रोने लगी। कुछ देर में बच्चा रोकर खामोश हो गया तो माँ ने अपने बच्चे को नंगी चारपाई पर चादर डालकर सुला दिया। फिर शब्बीर ने देखा कि वो एक अंधेरी कोठरी में गई। उसने बिजली का बटन ऑन किया लेकिन बल्ब रोशन नहीं हुआ तो वो परेशान हो गई। इरम आंगन से होती हुई दरवाजे तक पहुंची। उसने बाहर झांक कर देखा तो उसका शौहर अपने नौजवान भांजे के साथ जमीन पर लकीरें खींचकर कोई खेल खेल रहा था। बिलाल, बिलाल, क्या है, क्यों बार बार बाहर आ जाती है? चल अंदर जा। मुन्ना दूध के लिए भी लग रहा है, क्या गला दबा दूं उसका? हाँ दबा दे गला। मैं क्या करूं? क्या करूं? अरे अजीब बात करते हो, घर में बिजली भी नहीं है। क्या हुआ मानी, बिजली दोबारा कट गई क्या? अरे हाँ, बिजली नहीं है, जब बिल जमा नहीं करवाएंगे तो कटनी तो है। अच्छा अपना लेक्चर बंद कर, आ रहा हूँ मैं अंदर। तुम दोनों खेलो यार, मैं आ रहा हूँ। बिलाल झुंझलाता हुआ घर के अंदर आया और अपनी बीवी से उलझ पड़ा। हाँ, क्या तमाशा लगाया तूने? तुझे 1000 बार मना किया कि बाहर मत आए, मगर तू सुनती नहीं है। क्यों ना आया करूं? धोस है किसी की? और तुम कोई काम काज तो करते नहीं हो। क्या काम करूं? कोई काम वाम नहीं है। चोरी करूं, डाका डालूं, क्या करूं? अरे मेरा बूढ़ा बाप मेहनत मजदूरी करता है, खेती बाड़ी करता है, और तुम लोग कोई काम नहीं करते, हट्टे कट्टे हो। हाँ लगा दे नजर, लगा दे मेरी सेहत का नजर। वो अच्छा मेरी बात सुन, तेरे बाप की ना भी नई नई फसल कटी है, बड़ा पैसा मिला उसको। मैं कहता हूँ थोड़े पैसे उससे उधार मांग ले, मैं बाद में वापस कर दूंगा। तो देख घर का बिल भी भर दूंगा, बिजली का है। किस मुंह से मांगू? शर्म नहीं आती तुम्हें? अच्छा दो फोन ले ले। एक फोन भी नहीं दिला सकते। ये लेना मेरे फोन से कर। शब्बीर ने देखा कि इरम अपने शौहर का फोन लेकर एक तरफ हो गई और उसने अपने बाप को फोन मिला दिया। हेलो अब्बा जी, मैं बोल रही हूँ। बेटा कैसी हो? बड़े दिनों में तुमने चक्कर नहीं लगाया। अब्बा मैं बहुत परेशान हूँ, घर में रोटी के लाले पड़े हैं, बिजली कट चुकी है। अरे बेटा परेशान मत हो, तुम ऐसा करो बिलाल को मेरी तरफ भेजो, मैं कुछ पैसे उसको दे देता हूँ। अब्बा मुझे इसके साथ नहीं रहना। अरे नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। इरम के बाप के बराबर में माँ मौजूद थी, सारी बातचीत सुनकर परेशान हो रही थी। फिर उसने अपने शौहर से फोन ले लिया। हेलो इरम, बेटा मैं बोल रही हूँ, तुम्हारी माँ। तुम परेशान मत हो। ऐसा करो कुछ दिनों के लिए बच्चों को लेकर यहाँ आ जाओ मेरे पास। अम्मा मैं तंग आ गई हूँ। देख लेना तुम, मैं एक दिन गायब हो जाऊंगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, मैं बता रही हूँ। नहीं बेटा ऐसा नहीं करते, तुम यहाँ आ जाओ कुछ दिनों के लिए। हेलो हेलो इरम, हेलो
میں نے آپ کو منع بھی کرا تھا بلال سے شادی مت کریں اس کی. وہ رو رہی ہے, سرک سک کے مر جائے گی وہاں پر. ایسی باتیں مت کرو, ابھی وہ داماد آنے والا ہے, اس کے سامنے کوئی ایسی فضول بات نہیں کرنی, سمجھی تم؟ ارم کا شوہر بلال بالکل ناکارہ تھا. کام کاج کے بجائے مبینہ طور پر سسرال والوں کو تنگ کرتا تھا اور بیوی سے لڑائی جھگڑا بھی کرتا تھا. اس دن شبیر نے دیکھا کہ بلال اپنی سسرال میں کھانا کھا رہا تھا. ساس اس کے ساتھ بیٹھی تھی کہ اتنے میں بلال کا سسر بھی آ گیا. وعلیکم السلام. کیسے ہو بلال بیٹا؟ جی ٹھیک ہو؟ یہ رکھ لو, اور وہ بجلی کا بل یاد سے جمع کروا دینا. ویسے اس کی ضرورت نہیں تھی مجھے. نہیں, کیوں نہیں ضرورت تھی؟ ویسے ایک بات کہوں اگر برا نہ مناؤ تو؟ نہیں, بولیے. دیکھو, اب تم 2 نہیں 3 ہو چکے ہو, اور ایسے اتنی بڑی زندگی کیسے گزارو گے؟ ویسے تمہیں کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہیے. میں کام بھی کرتا ہوں اور کماتا بھی ہوں, مگر آپ لوگوں کی جو بیٹی ہے نا, وہ 1 نمبر کی نکمی ہے. جتنا بھی کما کے لاتا ہوں سب اڑا دیتی ہے, کچھ بھی بچا کے نہیں رکھتی ہے. ارے نہیں بیٹا, یوں لڑنے جھگڑنے سے کیسے گزارا ہوگا؟ تم دونوں خوش رہا کرو. کیسے خوش رہے؟ ہر دوسرے دن تو مجھے دھمکی دیتی ہے, بولتی ہے کہیں بھاگ جاؤں گی, غائب ہو جاؤں گی. کبھی کہتی کراچی چلی جاؤں گی, کبھی بولتی لاہور بھاگ جاؤں گی. پتہ نہیں کیا چاہتی ہے. ایسا کہتی ہے وہ؟ ہاں ایسا کہتی ہے. اور میں آپ دونوں کو ایک بات بتا رہا ہوں, وہ اگر کہیں غائب ہو گئی تو مجھے الزام مت دینا. ویسے بھی محلے والے میرا مذاق اڑاتے ہیں, ہنستے ہیں مجھ پر. ہنستے؟ مذاق اڑاتے؟ پر کیوں؟ ہنسیں گے نہیں تو اور کیا کریں گے؟ پورے محلے سے تو دوستی ہے اس کی. اس کہانی کی مزید تفصیلات ہم آپ کو دکھائیں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. کہیں جائیے گا مت, کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے, شبیر تو دیکھے گا. اور میں آپ دونوں کو ایک بات بتا رہا ہوں, وہ اگر کہیں غائب ہو گئی تو مجھے الزام مت دینا. ویسے بھی محلے والے میرا مذاق اڑاتے ہیں, ہنستے ہیں مجھ پر. ہنستے؟ مذاق اڑاتے؟ پر کیوں؟ ہنسیں گے نہیں تو اور کیا کریں گے؟ پورے محلے سے تو دوستی ہے اس کی. ارم کی ماں, دیکھ لو یہ کیسی فضول باتیں کر رہا ہے, اسے کہو چلا جائے یہاں سے. ہاں جا رہا ہوں, اور یہ پیسے رکھیں اپنے پاس, نہیں چاہیے مجھے. ارے نہیں بیٹا, غصہ مت کرو, یہ تو ایسے ہی بولتے رہتے ہیں, تم رکھو اپنے پاس یہ پیسے. آپ بھی کچھ نہ کچھ کہتے ہی رہتے ہیں, خاموش نہیں رہ سکتے. بیٹا آپ کے لیے چائے لاؤں میں, چائے پی لو. کھا چکا ہوں کھانا. ان کی بات کا برا مت ماننا, یہ ایسے ہی کہتے رہتے ہیں. میری بات تو کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے. اس واقعے کے کچھ دنوں کے بعد بلال کے سسرال میں کوہرام مچ گیا, کیونکہ ان کی بیٹی اپنے بچے اور شوہر کو چھوڑ کر کہیں غائب ہو گئی تھی. شبیر نے دیکھا کہ ارم کے بوڑھے ماں باپ اپنی بیٹی کے غم میں ہلکان ہوئے جا رہے تھے کہ ایسے میں ان کا داماد بھی وہاں آ گیا. کیا ہوا, کچھ پتا چلا ارم کا؟ کیا پتا چل رہا؟ اب اگر میں کچھ کہوں گا نا تو آپ دونوں کو لگے گا برا. آپ دونوں نے جیسی اپنی بیٹی کی تربیت کی تھی نا, اس کا یہی نتیجہ آنا تھا. کیسی تربیت کی؟ مجھے کیا پتا. جاؤ میرے محلے میں اور جا کے اپنے کانوں سے سنو وہ کیا کیا باتیں کر رہے ہیں. کیا باتیں کر رہے ہیں؟ تم نے ارم کو تلاش کیا؟ جاؤ اسے تلاش کرو. ارے آپ دونوں بحث ہی کرتے رہو گے, یا کسی نے پولیس میں رپورٹ کیا کروائی؟ کہاں گیا تھا میں تھانے. تو کیا کہا تھانے والوں نے؟ کیا کہنا انہوں نے؟ یہی کہا کہ بھاگ گئی ہوگی کسی کے ساتھ, چپ کر کے بیٹھو, آ جائے گی صحیح. تھانے والوں کا تو دماغ خراب ہو گیا. تھانے والوں کا دماغ خراب نہیں ہوا, بلکہ آپ کی بیٹی کا کردار خراب ہو گیا. اور زیادہ واویلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ورنہ بہت بے عزتی ہوگی آپ دونوں کی. تم کیسے شوہر ہو؟
जिसे अपनी बीवी की फिक्र नहीं। तुमसे कुछ भी नहीं होने वाला। मैं खुद जाता हूँ थाने और मैं अपनी बेटी को खुद तलाश करूंगा। ओके, मैं भी चलता हूँ वापस। इरम को घर से गायब हुए कई रोज हो गए थे। थाने का बार बार चक्कर लगाने के बाद पुलिस ने गुमशुदा लड़की को तलाश करना शुरू कर दिया था और जब इरम के शौहर से तफ्तीश की तो इस तरह की कहानी सामने आ गई। शब्बीर ने देखा कि इरम का शौहर बिलाल अपने ससुर के साथ थाने में दाखिल हो रहा था। फिर वो हेड कांस्टेबल के पास पहुंच गए थे। मेरी बेटी कितने दिनों से गायब है। हमने दरख्वास्त भी दी हुई है तो अभी तक आपने मेरी बेटी को तलाश नहीं किया। क्या नाम आपकी बेटी का? इरम। इरम। और ये कौन सा है? ये दामाद है मेरा। अजीब सी बात है, बीवी इनकी गायब है, शोर आप डाले जा रहे हैं। नहीं सर, ऐसी बात नहीं। मैं भी बहुत परेशान, मेरा तो घर बर्बाद हो गया। अच्छा, इधर देखो मैं तो। कांस्टेबल ने गौर से बिलाल को देखा और अपनी जगह से उठ गया। बाबा जी आप लोग बैठे हैं, मैं साहब से कोई बात करके आता हूँ, फिर मैं आपको जवाब देता हूँ, ठीक है? शब्बीर ने देखा कि कांस्टेबल अंदर कमरे में अफसर के पास गया और राजदारी से कुछ कहने लगा। अफसर ने इशारों में उसे कुछ हिदायत दी, जिसके बाद कांस्टेबल वापस आ गया। वो क्या कहा बड़े साहब ने? बाबा जी अब आराम से घर जाए, बहुत जल्द आपकी बेटी इंशाल्लाह घर आ जाएगी। हाँ ना, देखा मैं भी यही कह रहा था, आप तो बिला वजह परेशान हो गए। चले मुझे। हाँ चलो, एक मिनट। बाबा जी आप घर जाए, आप जरा यहाँ बैठिए। कौन? मैं? जी आप। लेकिन क्यों? इसलिए कि बड़े साहब का हुक्म है, चाय पिला के जरूर भेजिएगा। दरअसल हमारे खाने की चाय बहुत अच्छी होती है। आप चलिए। अच्छा ठीक है, आप बैठिएगा। लेकिन सर मैं चाय पीता नहीं। अरे आप पिए तो सही, फिर आप देखिएगा। और दो मोहम्मद, और इसको लेकर तो जाओ ड्राइंग रूम में और उसको कड़क वाली दूध पत्ती चाय पिलाओ। और जब ये चाय पिए ना तो इसको पता चले कि थाने की चाय होती कैसे है। जाओ जरा लेकर तो जाओ इसको। साहब ये आप क्या कह रहे हैं साहब? ड्राइंग रूम चाय मेरी समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। बहुत कुछ नसीब लोगों को नसीब होती है, पुलिस स्टेशन की चाय। इसी दौरान शब्बीर ने देखा कि बिलाल के चेहरे का रंग उड़ चुका था। चंद ही लम्हों में दो पुलिस एहलकार उसके पास पहुंच गए। पुलिस ने शक की बिना पर इरम के शौहर से तफ्तीश की तो उसने इंकशाफ किया कि उसने बीवी के मुबैना खराब चाल चलन की वजह से उसे अपने भांजे की मदद से कत्ल करके लाश गड़ा खोदकर दबा दी थी। और इस इंकशाफ पर पुलिस ने बिलाल और उसके भांजे को गिरफ्तार कर लिया। शब्बीर ने देखा कि इरम के कत्ल की खबर सुनकर पूरा गांव सन्नाटे में आ गया था। पुलिस ने गड़ा खोदकर मकतूला की लाश बरामद कर ली थी। अभी ये मनाजिर नजरों से ओझल नहीं हुए थे कि शब्बीर को गांव का वो जमींदार मिल गया जो मकतूला और उसके घर वालों के बारे में अच्छी तरह जानता था। एक दो दफा मैंने इनकी पंचायत की है, उस पंचायत में इसके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि इसका बिजली का बिल वो करें। इसने पिछले सीजन में, गंदम के सीजन में, मेरे सामने 10 मन गंदम इसने अपनी बेटी को दी है, वो लेके गया था। तो घर में हम वही जो हमने पंचायत की, वहाँ में यही बात नजर आई भी, या पता कि ये काम नहीं करेगा ना, इसका घर में सुकून नहीं आएगा। डीपीओ साहब, वजीर आजम, आईजी पंजाब से रिक्वेस्ट है इस बेचारे गरीब को इंसाफ दिलाया जाए। ये निहायत ही गरीब और शरीफ और बेकसूर है। इरम बेगुनाह थी। उसके शौहर ने अपनी काहिली और बेरोजगारी के तानों से तंग आकर एक इल्जाम तराश लिया था और उसी इल्जाम के तहत उसने अपनी बीवी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। पुलिस ने शर्मनाक वाक़े की जो तफसीलात बताई थी वो ये है। इरम बीबी बिलाल की बीवी है
जिसको उसने कत्ल किया था, और 24 को हमें पुलिस को इतला दी मुद्दई ने, तो मौका से जाकर उसकी लाश बरामद करवाई गई। मुलजमान तारक और बिलाल को मोरखा 25 को गिरफ्तार किया गया है। मुलजम के बयान के मुताबिक उसको उसके किरदार पे शक था। डेड बॉडी इधर इसने दफन की थी, एक गड़ा रकबा है लाल दीन जट का, वहाँ उन्होंने गड़ा खोद के दफन कर दी थी, उधर ही कत्ल की थी। यह है इरम की माँ का घर, जहाँ चप्पे चप्पे पर बेरौनकी और गुर्बत गवाही दे रही थी कि ये मजलूम खानदान था। जो कुछ थी असां कोई गलत नहीं की थी पुत को लेंदे, ठीक है ना, असां बुरी नहीं लेंदे, असां आपदे धी पुत पर ना आया, मैं जुगा व सामने मैं नहीं गलत बोलेंदी, ठीक है ना। क्यों अपना मेरे निक्का जा बच्चा रुलदा वदे ओ आपने जल्दी धक्का करे, मैं आपने जैसा दलील था खड़े। यह गलत बात है। हमारी बेटी के पास फोन ही नहीं था, जब भी करती थी अपने खामंद के मोबाइल से हमारे यहाँ फोन करती थी कि बाबा ये काम पे नहीं जाते, हमें पैसों की जरूरत पड़ती है, बच्चा है छोटा, इसका जो है ना कोई दूध लेना है, इसके खाने के लिए कुछ और लेना है, ये कमाता नहीं है, सारा दिन मारा मारा फिरता रहता है, इसी वजह से वो फोन करती थी। चल मैंने अपने बेटे और अपनी बीवी को वहाँ भेजा और जाकर पूछा, उन्होंने कहा कि हमारे पास नहीं है। वो 7 माह का बेटा वो छोड़कर चली गई है। मियां बीबी आपे लड़ दिया भीड़ दिया आपस च वधे रहने, जिडे ओ आदि ओ दुए इकट्ठे वधे रहने, साकू ई गाल दा इल्म नहीं किडे गए किडे नहीं गए। ये है वो सफाक शौहर जिसने अपने मासूम बच्चे का भी ख्याल नहीं किया और अपनी बीवी को गाय भैंस की तरह ज़िबा कर दिया था। तो उसकी मासी बुला रही थी कराची, तो उसको मैं बार बार रोका नहीं रुकी, वो मेरे को बक्के बैठी थी, तो उसने मार दिया। उस माँ बाप को किया मैं, तो नहीं माना उसने, फिर भी उस माँ पे वो ऐसा रहता है। मुझे मेरे साथ हो, मेरे हेल्प करो। मैंने कहा मुझे उनको वापस कर दो, उनकी लात जब बाँह तोड़ दो, घर बैठी रहेगी वो। कभी कहती है लाहौर चलें, कभी कहती है कराची चलें, इसलिए मैं तुझे बुला रहा हूँ। मैं नहीं गया, 10 बार इसने मुझे बुलाया, मैं नहीं गया। एक बार इसने कहा मुझे मिलने आओ, मैं मिलने गया हूँ, फिर ये कहता यार मेरे साथ हेल्प करो थोड़ी सी। मैं चलो ठीक है, हेल्प मैंने इसके साथ की है। शब्बीर ने लोधरा में दीनापुर के नवाही गांव चक नंबर 233 WB में पेश आने वाले इस इंसानियत सोज वाक़े की शदीद मजम्मत की है और कातिलों को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा किया है। शब्बीर जब इस अलमनाक वाक़े की तफसीलात मालूम करके लौट रहा था तो उसे चारपाई पर एक मैली सी दूध की बोतल दिखाई दी और शब्बीर का दिल दहल कर रह गया, क्योंकि मकतूला का मासूम बच्चा अब जिंदगी भर अपनी माँ की आगोश को तरसता रहेगा। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा।